Assalamualaikum students, welcome in digital learning class. SSCA provides a great opportunity for their students. I am Ms. Marina Hafiz and I will teach you science. I will start from today your first chapter, Introduction to Biology. And objectives of this lecture are to know about life, introduction of biology and branches of biology. In this lecture, first I will explain about the term life. Life is that it is a condition that distinguishes animals and plants from inorganic matter, involving the ability for growth, reproduction, functional activity, and continual changes, introducing death. Dear students, after knowing about the life, it's necessary to know how we can study life. So, the study of life and living things is termed as biology, and the word biology is derived from two Greek words. Bios means life and logos means study. इसका मतलब ज़िंदगी के बारे में जानना, उसका मुताला करना, वो साइंस की ब्रांच जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं. Ji students, now come forward. Main branches of biology. There are two main branches of biology. One is called botany and other is called zoology. Botany means study of plants. Plants के structure, plants की shape, इन सब के बारे में कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से, इन सब उसके टिश्यूज़ कैसे हैं, टिश्यूज़ की अरेंजमेंट कैसी है, इन सब के बारे में जो डिटेल स्टडी की जाए, इट कम्स इनटू द ब्रांच ऑफ बॉटनी. नाउ कम्स zoology. Zoology is a study of animals. What is mean by animal study? In which we discuss about the structure of animals, their similarities, their differences, as well as tissues present in animal body. All of these study come into the branch of zoology. Dear students, after knowing about biology and its main branches, let's move forward. Research during 20th century has led to the division of biology into a large number of specialized branches, and these specialized branches names are morphology, anatomy, histology, cytology, physiology, ecology, embryology, and so on. One by one, I will explain each branch with the help of examples in detail. So our first branch of biology is morphology. It is a branch of biology that deals with the study of the form and structure of organisms and their specific structural features. मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी में हम किसी भी ऑर्गेनिज़म्स के स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेशन, उसके स्ट्रक्चर के क्या खुसूसियात हैं और वो एक दूसरे ऑर्गेनिज़म से कैसे मुख्तलिफ है, इन सारी एक्सटर्नल स्टडी के बारे में जानना बायोलॉजी की ब्रांच मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं. हियर यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ parts of flower and as well as morphology of a frog. In both the picture, we easily know about the external feature of the frog. For example, body of frog consists of eye, head, trunk, digits, front leg, etc. And similarly, you know that parts of flower consist of sepals, petals, androecium and gynoecium. All these external structure of study is come into the branch of biology. Let's move forward. Next branch is anatomy. It is a branch of biology concerned with the study of the internal structures or organs of an organism, and in plants deals with the arrangement of different types of tissues in root and stem. एनाटमी के अंदर हम किसी भी ऑर्गन की इंटरनल स्टडी करते हैं. इंटरनल स्टडी से मुराद कि वो ऑर्गेनिज्म इंटरनली कौन कौन से ऑर्गन्स पर मुश्तमिल है. अगर अब हम फ्रॉग की बात करें, जब हम उसको कट करते हैं तो हमें उसके बहुत सारे सिस्टम विजिबल हो जाते हैं. अगर मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करती हूँ तो उसके अंदर हमें एसोफेगस, स्टमक, गॉल ब्लैडर, लीवर एंड इंटेस्टाइन विजिबल नज़र आते हैं.
इसी तरह अगर मैं किसी भी प्लांट की स्टेम को कट करके अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्ज़र्व करती हूँ तो मैं इजीली उसके टिश्यूज़ को ऑब्ज़र्व कर सकती हूँ कि इसमें जाइलम्स की अरेंजमेंट्स कैसे है और फ्लोएम के सेल्स की अरेंजमेंट कैसे हुई हुई है। और इन सब चीज़ों के बारे में जानना बायोलॉजी की ब्रांच एनाटॉमी में हम डिस्कस करते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड बोथ द ब्रांचेस clearly. After knowing about the anatomy, next branch is histology, the study of the microscopic structure of tissues of plants and animals. इसका मतलब कि हम जब प्लांट्स और एनिमल्स के टिश्यूज़ के बारे में डिटेल स्टडी करें, इससे मुराद कि एनिमल कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज़, इस मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू। अब कार्डियक टिश्यू और नर्वस टिश्यू बोथ आर डिफरेंट एंड बोथ फंक्शंस आर आल्सो डिफरेंट। तो इनके बारे में जानना कि इनका शेप, इनका स्ट्रक्चर, ये सब कैसा है, ये इनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी मतलब कि हमें थ्रू माइक्रोस्कोप इनकी जजमेंट करना कि सेल्स की अरेंजमेंट कैसी है, टिश्यूज़ किस तरह से अरेंज है, उनकी शेप क्या है। सिमिलरली अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो प्लांट्स के अंदर भी 4 मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ मौजूद हैं। अब जाइलम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन क्या है, फ्लोएम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, कहाँ लोकेट है, इन सब की स्टडी हिस्टोलॉजी की ब्रांच में हम करते हैं। After knowing about the tissues, next branch is cytology. As the name mentions, cytology. It means study of the structure, function and composition of cells and its organelles. You know that all the living organisms is composed of cells, and inside the cells different organelles are also present like cytoplasm, mitochondria, Golgi bodies, centrosomes, and function of each organelles is different from each other. सेल्स के अंदर जितने भी ये ऑर्गेनल्स मौजूद हैं हर एक का अलग अलग फंक्शन है। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करती हूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। अगर मैं साइटोप्लाज्म के बारे में आपको बताना चाहूँ तो साइटोप्लाज्म इज़ रिस्पॉन्सिबल for movement of material from inside to outside and outside to inside of the cells। मतलब जो कुछ भी हम मिनरल्स वगैरह लेते हैं अपनी डाइट के थ्रू वो सारे हमारे सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं और वो ट्रांसपोर्ट मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्म। तो इस सब के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, here you see the next branch that is called physiology. In this branch we discuss about the functions of living organisms and their parts। आपको यहाँ पिक्चर में रिस्पायरेटरी सिस्टम और हार्ट की डायग्राम नज़र आ रही है। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी के अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके जितने भी सिस्टम परफॉर्म अपना वर्क कर रहे हैं उनके बारे में जानते हैं, एज़ वेल एज़ उनके साथ साथ उनके जो भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनका क्या फंक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करती हूँ तो आपको इसके अंदर ट्रैकिया नज़र आ रहा होगा। ट्रैकिया का काम क्या है? ट्रैकिया का हम दूसरा नाम विंड पाइप भी कहते हैं एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर द विंड इनटू योर लंग्स। सिमिलरली अगर मैं एल्वोलाई की बात करती हूँ विच आर इज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स एंड दिस एल्वोलाई इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। अब अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। अब राइट चैम्बर का क्या काम है और राइट वेंट्रिकल का क्या काम है, इन सब के बारे में जो स्टडी की जाए डेट कम्स इनटू द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। किसी भी जानदार का एक दूसरे जानदार के साथ ताल्लुक़ या किसी बेजान चीज़ के साथ ताल्लुक़ जो जुड़ता है उसके बारे में मुताला करना, जानना, ये सब हम किस ब्रांच में पढ़ते हैं? इकोलॉजी में। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस और प्लांट इज़ लिविंग क्रिएचर एंड प्लांट नीड्स सनलाइट टू प्रिपेयर फूड and sunlight comes from the sun. So sun is a non-living thing
and plant is the living things, and both the relationship create a branch that is called ecology. Next branch is embryology, the study of the parental development of gametes, sex cells, fertilization and development of embryos and fetus. एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम जाइगोट के अंदर होने वाली जितनी भी चेंजेस हैं और वो चेंजेस जब तक कि वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में क्रिएट ना हो जाए उन सब की स्टडी को जानना, उसमें क्या क्या चेंजेस वक्त के साथ आती गई, वो हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। टैक्सोनॉमी, it is the branch of biology concerned with the classification of organisms according to structural similarities and dissimilarities. जी बच्चों, टैक्सोनॉमी क्या है? You know that in the earth, Allah created millions of organisms of different varieties. So it can't be possible to study all the living organisms in the one group. That's why it's necessary to classify the groups. आइए बच्चों, इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं, आप और दूसरे जितने एनिमल्स हैं उन सब का ताल्लुक़ किंगडम एनिमिलिया से है, लेकिन किंगडम एनिमिलिया को भी मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। वजह क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एनिमल्स की भी दो कैटेगरीज थी, एक वर्टिब्रेट्स, दूसरा इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो जिनके अंदर बैकबोन है और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स जिनके अंदर बैकबोन नहीं होती। अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो उसमें भी फर्दर वेराइटीज़ हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ एनिमल्स की हैबिटेट जो है वो वाटर है, कुछ खुश्की पर रहना पसंद करते हैं। जी स्टूडेंट, अब जैसा कि मैं बता रही थी कि कुछ एनिमल्स खुश्की पे रहना पसंद करते हैं, अगर आगे चल के बात करते हैं तो उनकी क्लासेस भी चेंज हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर आप इसको ऐसे समझिए कि हमारा ताल्लुक़ क्लास मैमेलिया से है। मैमल्स मतलब हमारी बॉडी पर एक तो हेयर्स हैं, सेकेंडली मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी ही क्लास से बिलोंग दूसरे एनिमल्स की बात करूं, जैसा कि कैंगरू हो गए या फिर हमारे पास एग लेइंग मैमल्स हो गए, तो उनके फीचर्स, उनके स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है हमसे। तो ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से एनिमल्स को क्लासिफाई करना ज़रूरी था। किसकी बिहाफ पे? उनकी स्ट्रक्चर सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पे, उनकी डिसिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर। तो ये जो स्टडी है ये कहलाती है हमारी टैक्सोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, let's move forward. Next branch is genetics. It is the study of genes, genetic variation and heredity in living organism. क्या मतलब है इसका? आसानी से आप यूँ समझ सकते हैं, आप लोग माशाल्लाह घर में जितने बहन भाई हैं आप लोग उसको खुद ऑब्ज़र्व कीजिएगा। सम आर कोरिलेटेड, सम आर नॉट रिलेटेड। इट्स मीन कुछ बहन भाइयों की शक्लें बहुत मिलती हैं, कुछ की नहीं मिलती, कुछ की पापा से मिलती हैं, कुछ की मदर से मिलती हैं, कुछ का आई कलर मम्मा पर गया है, कुछ का फादर के ऊपर गया है। तो इन सारी का ताल्लुक़ हमारे बॉडी के अंदर मौजूद जीन से है। और जीन्स क्या हैं? जीन्स कंसिस्ट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। मतलब अल्लाह ताला ने हर इंसान की बॉडी में डीएनए स्ट्रक्चर दिया है, एंड डीएनए कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ बेसिस, और वो डीएनए 4 मुख्तलिफ बेसिस पर मुश्तमिल है जिसको हम नाइट्रोजनस बेसिस कहते हैं। अब उनके नाम आप जब आगे बढ़ेंगे हम तब डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इन जीन्स के आपस में मिलने से, मतलब फादर एंड मदर के जीन्स जब आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर वेरिएशंस डेवलप होती हैं और वो वेरिएशंस फिर उनकी औलाद के अंदर दाखिल हो जाती हैं। जब और आप कंपेयर करेंगे अपने बहन भाइयों को तो आप देखेंगे कि कुछ की क्वालिटीज़ फादर से रिलेट करती हुई नज़र आएंगी, कुछ की क्वालिटीज़ मदर से रिलेट करती हुई आएंगी। तो इन सब के बारे में जो स्टडी की जाए, इट कम्स इनटू द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि बायोलॉजी की बहुत सारी सब ब्रांचेस हैं, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच जिसका नाम है पैलेंटोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द फॉसिल्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। फॉसिल्स क्या हैं?
जब कई साल गुज़र जाने के बाद जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको ख़त्म हो जाना है। ये तो दुनिया की हकीकत है, अल्लाह ताला का कानून है। जब वो प्लांट्स एंड एनिमल डाई हो जाते हैं तो वो अंडर द मड दब जाते हैं और काफ़ी साल गुजरने के बाद वो जो बॉडीज स्ट्रक्चर एनिमल्स एंड प्लांट्स के होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और वो चेंज होकर किस में तब्दील होते हैं, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। अब इन फॉसिल्स की स्टडी जो की जाती है, जिसमें हम एनिमल्स की फॉसिल्स भी ले सकते हैं और प्लांट्स के भी, वो हम किस ब्रांच में डिस्कस करते हैं, पैलियोंटोलॉजी के अंदर। प्लांट्स की स्टडी की जाए, प्लांट्स फॉसिल्स की, तो वो कहलाती है पैलियोबॉटनी। और अगर हम एनिमल्स के फॉसिल्स की स्टडी करें तो वो कहलाती है पैलियोजोलॉजी। क्यों? क्योंकि हम आगे ही पढ़ चुके थे कि जोलॉजी मीन्स एनिमल्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड क्लियरली। Next branch is biochemistry. It is sometimes also called biological chemistry. What is biochemistry? आइए पढ़ते हैं इसको। The study of chemical processes within and related to living organism. केमिकल प्रोसेसेस जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हों, उनके बारे में जानना कि वो किस चीज़ में हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और किस न्यू चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। ये तमाम चीज़ों का मुताला बायोलॉजी की ब्रांच बायोकेमिस्ट्री में हम डिस्कस करते हैं। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यू नो डैट हम अपनी डाइट में डिफरेंट काइंड्स की न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। अब जो हम कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड, राइस, तो वो हमारी बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है एंड कार्बोहाइड्रेट्स फिर चेंज हो जाता है डिफरेंट केमिकल्स के अंदर और वो डिफरेंट केमिकल्स फिर हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में एब्जॉर्ब होते हैं। तो इन सारी जो प्रोसेस हुआ जिसमें कार्बोहाइड्रेट चेंज होता है या शुगर चेंज हो जाती है या फैट डिकम्पोज होते हैं, फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं, फैट्स के पार्टिकल्स, इन सब की स्टडी हम बायोलॉजी की ब्रांच बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। Next branch is microbiology. It is the study of microorganisms, those being unicellular or multicellular organisms. माइक्रोऑर्गेनिज्म बेटा वो जानदार, ऐसे जानदार जो हमें आँखों से दिखाई ना दें। अब उसकी भी दो टाइप्स हैं, एक वो जिनकी बॉडी वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी हो, अनदर मल्टी सेलुलर विच इज़ मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या करते हैं बेटा? माइक्रोबायोलॉजी में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और इसके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर आजकल एक वायरल डिज़ीज़ कोविड-19 फैल चुका है। अब ये एक वायरल डिज़ीज़ है। वायरस क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं बॉडी में जाने के बाद, इन सब के बारे में रिसर्च करना, जैसा कि आजकल साइंटिस्ट बिज़ी हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और वैक्सीनेशन की तैयारी में मसरूफ़ हैं। इन सब की स्टडी हमारी क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। आइए एक दूसरी डिज़ीज़ के बारे में जानते हैं। बच्चों, सेकंड मोस्ट कॉमन डिजीज इज टाइफाइड। टाइफाइड इज कॉज ड्यू टू द बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी। अब साइंटिस्ट का साल्मोनेला टाइफी के बारे में रिसर्च करना, उसका स्ट्रक्चर मालूम करना, उसके सिम्टम्स को जानना कि वो बैक्टीरिया क्या क्या सिम्टम्स कॉज करता है किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद, इन सब की रिसर्च स्टडी और इसके साथ साथ उसकी वैक्सीनेशन के बारे में जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, ये सब स्टडी हमारी किस ब्रांच के थ्रू होती है? माइक्रोबायोलॉजी के जरिए। लास्ट ब्रांच इज बायोटेक्नोलॉजी. It is a technology that use living systems and organisms to develop or make products for the welfare of mankind. मतलब हम टेक्निक्स को लिविंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हुए किसी नई चीज़ को बनाएं, किसके लिए? इंसानियत की भलाई के लिए, ताकि वो चीज़ें इंसानों के काम आ सकें। उसकी स्टडी किस टर्म में आएगी? हमारी बायोटेक्नोलॉजी की। अगर हम चार्ट देखते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट ब्रांचेस को कवर करती हुई नज़र आती है। मतलब हमारे हेल्थ के अंदर सपोर्ट कर रही है,
इसी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम न्यू से न्यू मेडिकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप अपनी सराउंडिंग में एग्जांपल्स देखना चाहें तो आपके सामने बहुत आसान एग्जांपल है फर्मेंटेशन की। मतलब जिस तरह से हम ईस्ट वगैरह को प्रिपेयर करते हैं, और आपको पता है वो ईस्ट हमारे फूड आइटम्स के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। पिज़्ज़ा तो सब खाते ही हैं ना, सबको पसंद है। तो आप सबको पता है वो ईस्ट किस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करके तैयार किया गया, वो हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार कर रहे हैं। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी क्लियरली। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी ब्रांचेस अच्छे से समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स कम इनटू द समरी कि हमने अब तक क्या क्या डिस्कस किया अपने इस लेक्चर में। I discuss about life and its origin, as well as I also discuss about the concept of biology and its branches. अब आपका होमवर्क क्या है? आपको राइट अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन योर डेली लाइफ। आपको अपने जर्नल में बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है आपकी डेली रूटीन के अंदर, क्या इम्प्लीमेंट हो रहा है डेली रूटीन के अंदर, बायो क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रही है आपकी लाइफ में, आपको इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड एन्जॉय द लेक्चर वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब SSCA YouTube channel and get notification for our upcoming lectures.